Good evening, and we are live. Hello, everyone. Today we started at 7 instead of our usual time 6 because there were some considerations and hope that you did not have to wait for a long time. And today we have a special guest, and I would like to tell a little bit about her when when she joins us. But before that, let me tell you, I know her, but I didn't know that I know her, and we have been part of the same group for more than a year, but I didn't know it was her. And when I realized that she was introduced to me by a third person who was part of My Waste, My Responsibility, and gradually I figured out that we should have known each other for like over 2 years now, but such is life. You are part of groups, and you're added by common warriors, fellow warriors, and you don't get to meet all the 100 200 people. You don't get to have interactions because of COVID especially. And then one day you just realize that we know each other and we have been part of that group for a long time. So such is the story. I'm sure Preeti also doesn't know, or maybe hasn't realized yet. So when she joins, I'll remind her. But welcome everyone to yet another episode of My Waste, My Responsibilities, Wednesdays for Waste Warriors. WWW equals 5 hours. So 5 hours of waste management. We always start with refuse, reduce, reuse. But people are focusing on the last one, that is recycle, because it gives you a lot of economic benefits, and the first three are just your habits and behaviors. So it takes time. Just a second to join, so I'm going to help her. All right. And all right, so I'm back, and I hope you're able to hear me. I hope you're able to hear me. So like Cheshta said, that's the point of this initiative. Yes. And of late, I have been interacting with so many new warriors. You won't even believe where all they work and what all they do. In the hilly regions of Tamil Nadu, in far-fled villages where there's literally no system of waste management, in Uttarakhand, in Himachal, you name it. And I'm so happy to connect with them because you get to know their challenges, and then you also can share your stories. Whenever we share, there is always a little spark that, oh yes, that aha moment someone gets, which is possibly replicable, I mean to say, gosh, what's happened to me, which is replicable by others in their regions, and maybe it doesn't work where we are. So it's really, yes, warrior from Gujarat, Vadodara. I haven't interacted with any of them, and I'm welcoming. Please, you're invited. If you are from Gujarat, Vadodara, or Rajasthan, please DM us and let us know what all you do. Please join us, our group, My Waste, My Responsibility, and let's have some
interaction. Let's know each other, and you are all most welcome to be part of this Insta Live. It's really good when we invite people from other cities or other states where we don't know what's happening. We only heard maybe one or two good stories or a video on Instagram or Facebook. But reality is much beyond and much more than one video or one little news article. And when we have people, the real people who've worked in that, that's when we come to know the perspective or the depth of what is needed, what are the challenges, and how can we work together to solve that, to resolve it, and to address the challenges. Let me. Okay. I think Preeti is here. Preeti? Audible? Yes. I think You are. audible as well. Hi, how are you? I'm good. How are I'm you? doing good. Finally, you made it. Glad. I was just I telling know I them. was just struggling. I I was I just struggling to join. Yeah. that's all right. I was just telling them how I Hmm. realized that I know you for a long time, but I didn't know that I know you for a long time. And maybe you also Is don't it? know it yet. I Okay. got to know that you are there in the wiki group when I Yes. saw. Yeah. So Yeah. that was one click that was like, oh, there are wiki members here. Yes. Yes. So we are part of the same Wiki Water Resource Council, and you are Yeah. heading Ladakh, and I'm heading Maharashtra. Yes. But so good to connect on that, and You had Maharashtra. That's even more connecting because I'm from Mumbai. So and and I was asking Mansi ma'am who all are there from please Maharashtra? please join Maharashtra. You're most welcome. And I'm happy with Ladakh. Yes, good. That's your land right now. You're working there, so Yeah. it's good. I'm really impressed with your courage and your uh, decision to like leave home and people go to places which are like cushiony and all that, but you've taken a more like out of the box kind of a decision. So congratulations, bravo. Thank And you. I would actually we when we did the promotions, we said that here is a civil engineer who's an engineer by education, but an environmentalist by passion. So why don't you introduce yourself in the best way that you would like to be known as? I really don't know what I would like to be known as. Okay, the way you would like It's to just introduce that, yourself. yeah, I would like just give a brief introduction. I was like many others and still trying, just chose a different path. After completing my engineering, I was working in Mumbai only. I was working in the Bandra Kurla complex for more than 7 years. And life was regular. Mm-hmm. The hustle was always on. But then in 2017, it was the first time when I did a trek in the Himalayas in the Himachal Pradesh. Mm-hmm. And I think that is something that really changed a lot of things. It changed my perspective towards myself first and then the environment. I won't say that in the first trek only everything like it became I want to save the environment. No, no, it was never like that. It was more of introspection or more of self realization that uh, I can actually do a lot more. I just Mm-hmm. don't need to hustle around in the city life. Mm-hmm. And that was one thing that happened. And just after my first trek, the things that changed, I started taking up more work or I started getting myself more involved in social work.
So I started working with a organization that was, I volunteered with them for donating food from where it is available in excess to people who need it. That was the first thing. And there was this continuous travel that happened in the mountains, because I needed, like, every 3 months I wanted to go back to the mountains. And so travel happened, treks happened, and when more of visits happened to the mountain, then it was something like I need to do something more. And that's when I was thinking what I want to do. And I read an article which the title was Ordinary People Doing Extraordinary Work in the Mountains. And Wow. there was one woman who, her name is Lakshmi. She works with a hiking organization. Like, she started this waste related initiative with them. And that really gave me a push that can I also try? Because I also did not like the litter, but can I really get my hands dirty? And I took that as a challenge and to myself, and I interned with them, and continuing my corporate life, interned with them, studied environment management, because I never wanted to pick up the waste for all of my life. I don't want to pick up the waste, and I don't want others also to do the cleanup drives. I don't like cleanup drives. But how can we find more meaningful solutions? So that's why I studied environment management with my job. And then came 2019, where it was a time that I can't be in the city anymore. I need to go and I need to leave. And so I joined Naropa Fellowship, which again gave me a buffer time to think about what I want to do. And it was an entrepreneurship leadership program, so it helped me even more. And that's how Ladakh happened, to be very honest. Otherwise, I spent more time in Himachal and Uttarakhand. But it was 2019 when I joined Naropa Fellowship. I spent the winters here. I chose to spend the winter here because all the other times it was like I would spend, say, months time or little more than month. But I always wanted to stay in a place for the one whole year and experience what are the difficulties, because we always go in the favorable times. So, and Ladakh being very unique in itself, it was one of the most challenging things, but I just again took it up as a challenge, and I was very happy that I was able to do it. And here I am. Just that was 2019. This is 2023. Have my organization. We work here. And like, yes, there are challenges, but these are fun challenges, and it's a lot to learn about yourself. I'll definitely not say that I've been doing a lot for the environment. I would say that somewhere being in the mountain, it's more about knowing yourself. And somewhere in the cities, that is missed out, because we are so busy with the yes, there's so much happening. Here in the winters, there is a pin drop silence. So it is all the time to yourself. And you are able to do that introspection, and you are able to think about a lot of things. And then you really realize what is important in life. And I think that's what has happened with me. That's really good. And let me tell you, I want to do that. लेकिन मुझे 2 साल और बाकी हैं. So you know, when my son completes 12th and he is on his way to college, तब हमने deal करके रखी है कि then I will start and you start that life, because right now I have children growing up वाला phase चल रहा है. But I would like to understand first is how did your friends, family, and everyone, what was their reaction or response? And then second, tell us about this fellowship. So the first thing I would really like to mention, जो आपने अभी बताया कि once your child completes 12th. So मेरे केस में ये चीज था कि I am still not married and I was single then and I'm single now, and वो चीज ने मुझे बहुत help किया कि I did not have those other responsibilities and मैं choose कर सकती थी अकेले अपने रास्ते पे जाने का. Family, friends, particularly family, it was more it was like
हाँ 1 साल का कोर्स करने जा रही है। हाँ ट्रैवल कर रही है। देन इट वाज लाइक अरे अभी कोर्स किया है तो अभी थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है तो काम तो करना पड़ेगा। So they thought कि I'll come back, but now they know I might not come back. So वो छोटे छोटे स्टेप्स थे, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद भी फिगर आउट कर रही थी एंड साथ में मेरे पास वो क्लियर आंसर नहीं था कि मुझे क्या करना है। वो धीरे धीरे हुआ। तो वही था कि अभी फिगर आउट तो करने दो कि करना क्या है, एंड जब वो चीज हुई तो नाउ थिंग्स आई वुड से कि थोड़े और क्लियर हो रहे हैं एंड आई नो कि मैं मुंबई तो नहीं जा रही फॉर श्योर। कि मैं वापस लद्दाख मुंबई आ रही हूँ, ओके मैं लद्दाख आ रही हूँ, so I'm just going to call you and say प्रीति मैं आ रही हूँ। श्योर डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड कमिंग टू द थिंग के फेलोशिप क्या था, सो अगेन आई टेल यू कि थिंग्स हैव वर्कड इन माय फेवर अ लॉट। मैंने अपना 100-200% दिया, बट देन थिंग्स हैव आल्सो फॉलन फॉर मी इन प्लेस इन ऑल दिस टाइम। देयर हैव बीन मल्टीपल चैलेंजेस, बट जब हम डटे रहते हैं तो फिर वो रास्ता भी बन ही जाता है। सो आई हैड अ चॉइस कि मैं कोई एनजीओ में जाके काम कर सकती थी, कि पर ये था कि अगर एनजीओ में जाके काम करूंगी तो फिर वही होगा कि वापस वो जॉब वाला चीज आ जाएगा। बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, एंड ये फेलोशिप प्रोग्राम 1 साल का है एंड उसमें भी वही था कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप प्रोग्राम फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द हिमालयन रीजन्स, विच जस्ट फिट विथ व्हाट आई वांटेड टू डू। एंड वो फेलोशिप में भी वही था कि वी वर बीन टॉट कि आप कैसे स्टार्टअप आइडियाज बना सकते हो। सो मेरा कोई प्रोडक्ट वाला आइटम स्टार्टअप नहीं था। मेरा सिंपल था कि हम लोगों को ज्यादा अवेयर कैसे करें, लोगों के लिए और सॉल्यूशंस कैसे लाए, एंड रादर देन डूइंग स्केलेबल प्रोजेक्ट्स हम ग्राउंड पे रिमोट जगह पे जाके काम कैसे करें। तो वहां पे बहुत सारे फैकल्टीज आते थे, अलग अलग लोग आते थे, हमें टूरिज्म के बारे में सिखाया जाता था, हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट सिखाया जाता था, मैनेजमेंट स्किल, पीपल स्किल, बहुत सारी चीजें। सो इट्स लाइक बंच ऑफ एवरीथिंग टुगेदर एंड वी हैड अ ब्यूटीफुल लाइक बंच ऑफ फेलोज विद अस। तो हर कोई अलग अलग जगह से आया है। there are Ladakhi people, there are people from the other Himalayan regions, including Nepal and Bhutan, and there were people from the rest of the India. तो ये जो फेलोज का जो कोहोर्ट था वहां से भी इतनी ज्यादा चीजें सीखने मिलती थी। क्लास में तो कुछ सीखा नहीं सीखा, बट वो फेलोज से बहुत ज्यादा चीजें, और जो कल्चरल एक्सपीरियंस था सबके साथ वो एक अलग ही था। सो इट वाज मुझे अपने आप को बफर टाइम देना था टू फिगर आउट कि कैसे काम करना है, क्या करना है। तो उसी टाइम पे आई स्टार्टेड विद वर्किंग विद अदर पीपल। हम यहाँ के गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ मिलके ट्रेनिंग्स करते थे। 2018 में भी मैंने ट्रेनिंग एंड लोगों के साथ, वैसे लोकल्स के साथ काम किया था। तो वही चीज आई कंटिन्यूड, बट देन कोविड ऑल्सो हैपेंड which made things more difficult. But I decided कि नहीं, कॉर्पोरेट में वापस नहीं जाना है, करना तो यही है। सो दैट वाज अगेन चैलेंजिंग पार्ट कि सैलरी नहीं है, 2019 से सैलरी नहीं था, तो सेविंग थोड़ा बहुत करके रखा था, प्रोजेक्ट्स आए हैं बट पैसा नहीं आया है। सो वी हैड टू स्टक अराउंड विद दैट थिंग एंड फॉर्चुनेटली आई फाउंड राइट पीपल। आई हैव टू Ladakhi वर्किंग विद मी एंड दे आर लाइक माई लाइक बैकबोन। उनके बिना मेरा काम नहीं हो सकता है, एंड उनका साथ में होना एंड देम बीइंग विद मी ऑल द टाइम, और वो चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ बनाते हैं। मी लाइक बाहर से आके यहाँ पे काम करना, इट इज चैलेंजिंग। हमारे पास एक अलग ही पर्सपेक्टिव रहता है। द रीजन आई चूज टू स्टे इवन इन द विंटर्स इज बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि चैलेंजेस क्या होते हैं। हम एक थर्ड पर्सपेक्टिव लेके आते, अरे इतना कचरा है, पर जब यहाँ पे हम बैठते हैं सर्दियों में, जब चीजें कुछ नहीं मिलती हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, इतना तो एक्सेस होना चाहिए ना। शहरों में तो हमारे पास फिंगर टिप पे वी गेट फूड और एनीथिंग दैट वी नीड। देयर आर सर्विसेज लाइक समवन कैन पिक योर पार्सल एंड ड्रॉप इट टू अदर पर्सन इफ यू डोंट हैव टाइम। जहाँ जबकि यहाँ पे देयर इज नो लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो पुअर। तो ये सारी चीजें जब हम यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं,
तब वो बहुत ज्यादा समझ में आता है. देन दैट एम्पथी समवेयर बिल्ड्स. फिर वो बोलने के लिए नहीं होता है कि ट्राई टू बी इन देयर शू, बिकॉज वंस यू आर इन देयर शू देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या चीज है. सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. एंड पिछले 2 सालों में दिस इज आवर थर्ड ईयर एंड वी हैव बीन एबल टू, लाइक, I still feel unreal about things. Okay, we've been able to do quite a lot of things, which I never thought. Maybe in 2017 when I did my first trek, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं पहाड़ों में ऐसे रहूंगी, अकेले रहूंगी एंड हम ऐसा काम करेंगे कि मैं किसी के साथ, मतलब लोग मेरे साथ काम करेंगे. So these are very, so that's why I say कि जब when I was in the corporate and when I was in Mumbai, ये सारी चीजें सोची नहीं थी. I was also like others in the city. It just things found its way and धीरे धीरे चीजें बदली. And I still just say that कि अभी तो we've just started. We don't know how long we'll go, how far we'll go, and hopefully the way things are going, hopefully we'll go very far. And it is not about, again, me, it is about the people and the community. So if more and more people join, then more work will happen. It will happen. It will happen. It always takes that first step. जब हम वो first step Yes. लेते हैं, whether it is to find ourselves, whether it is to explore something else, whether to find our own mission, first step leads towards action. अगर हमने वो first step नहीं लिया और हम सिर्फ सोचते रहे, plan बनाते रहे और उसे उसको एक रोमांटिसाइज करते रहे कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, लेकिन कभी होगा नहीं. और फिर जब एंड का वक्त आएगा तब हम लोग रिग्रेट्स की लंबी लिस्ट लेकर पड़े होंगे दुख के साथ. एंड आई रियली बिलीव दैट वन शुड not have any regrets at the last moment. And इसलिए जो भी आपने सोचा है उसे आप करना शुरू कर दो. Yes, there will be 10 failures, 100 failures, doesn't matter. Like the Japanese saying that fall 7 and get up 8. That's what we have to do. Yes. It's very inspiring, प्रीति. मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि आप मेरा younger version हो कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं उस समय ऑरोविल जाके रहना चाहती थी और मैं ऑरोविल में जाकर गार्डनिंग और पेंटिंग करना चाहती थी. That's it. That was my dream. मुझे और कुछ नहीं मेरे उसमें था. लेकिन फिर ऐसा कुछ हो गया कि यूनिवर्स ने कुछ नया प्लान बना लिया. And within 2 months, I was married to someone who was absolutely new, and it was like we chose each other. So life is what happens to you when you're busy making other plans, something like that. Yes. So really great. Now tell us about this initiative जो आपने शुरू किया है. So initiative जो शुरू किया है उसका नाम है लिटिल ग्रीन वर्ल्ड. एंड जो लिटिल ग्रीन वर्ल्ड नरोपा फेलोशिप में मेरा लाइव एक्शन प्रोजेक्ट था, लाइक द स्टार्टअप आइडिया. एंड वहां पे वो सीड हमने बो किया था एंड बीज हमने डाला था. एंड फिर पेंडेमिक के टाइम पे उसको और थोड़ा अच्छे से पानी दिया एंड उसमें भी कुछ बीज फेल हो गए, कुछ फिर दूसरे लगाने पड़े. तो वो काम चलता रहा. एंड पर वही था कि from 2018 when I actually started working in the Himalayas on the education, मेरा main vision यही था that we want to make people zero waste practitioner. We want to make people conservationist. ऐसा नहीं कि हर कोई zero waste achieve कर लेगा, but at least वो शुरू करे, वो behavioral change पे काम करे. And that is what we've been trying to do. लोगों को नहीं पता है कितने टाइप्स के प्लास्टिक है, लोगों को नहीं पता है कि हम डेली लाइव्स में कितने टाइप्स के प्लास्टिक यूज करते हैं एंड वो हमारे लिए कितने यूजफुल है, हार्मफुल है. देयर आर रियली गुड यूजेस ऑफ प्लास्टिक, बट फिर काफी सारे ऐसे हमारे लाइफ में हमारे ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें आती है जिससे प्रॉब्लम होती है. तो हम बेसिक चीजें बताते हैं, हम वो अवेयरनेस ग्राउंड लेवल पे कि अगर कोई आज भी we've been very fortunate. So हम एक विप्रो का प्रोग्राम करते हैं, विप्रो अर्थियन प्रोग्राम. Again that came as a support to us
जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो वो हमारा एक प्रोग्राम, हमें कोलैबोरेशन CSR प्रोजेक्ट मिला, विच अगेन गोज अलोंग विद एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। हम काम करना चाहते एनवायरमेंट एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी, सेकेंड चीज की सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स कैसे बताएं, Yes. कि लोगों को अवेयरनेस तो है बट ऑल्टरनेटिव्स कैसे अडॉप्ट करें, तो उसके ऊपर काम करना। तो जब हमारे पास कुछ नहीं था तो ये प्रोजेक्ट आया, एंड इसके थ्रू हम लद्दाख के सारे स्कूल्स में रीच आउट करते थे, अभी भी करते हैं। इनफैक्ट कल और आज भी हमारा 2 दिन का मोनास्टिक स्कूल्स के टीचर्स के साथ ट्रेनिंग था, विच वॉज अ वेरी न्यू थिंग। लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम एक मोनास्टिक, 2 मोनास्टिक स्कूल्स हमारे साथ ट्रेनिंग में आए थे, उसमें से एक मोनास्टिक ननरी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया, and they came in the top 20 of the at the India level competition. Nice. And we took them from Zanskar to all the way to Bangalore. So not just limiting this environmental education and alternatives part to the communities or to the government or private schools, but we have also introduced it to religious institutes, कि ये भी तो इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं, ये भी तो एनवायरमेंट के बारे में हम वी इंडियंस, वी आर वेरी ड्रिवन बाय रिलीजन। वो कभी अंधश्रद्धा कुछ है कि ऐसा बोला जाता है, ऐसा करना है, तो हम बहुत मानते हैं वो चीज को। सो ये एक जो इंस्टीट्यूट बॉडी जो है, ये हम जो करना चाहते हैं उसके लिए और भी अच्छा काम कर सकते हैं। एंड इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि हमारे नन्स ने इतना अच्छा काम किया, एंड दे मेड इट टू लाइक उन्होंने विनिंग के कंपटीशन के हिसाब से नहीं किया था, they were just doing their work, we helped them कि you come on board, you do this project। उन्होंने किया and they came in top 20, उनको 50,000 प्राइज मनी मिला, they went all the way to, उनकी फर्स्ट फ्लाइट थी। और वो भी विंटर में, फरवरी में, रोड्स बंद होने वाले थे बिकॉज बर्फ इतनी हो रखी थी रास्ते में, वो 3 दिन पहले ले आ चुके। उनके वहां से ज़ांस्कार से वो जहाँ रहते हैं वहां से ले आने के लिए 1 दिन का ट्रैवल है। सो अगेन इट्स वेरी फार, और उसमें भी इतनी बर्फ में। So they came 3 days in prior, and after that from here they stayed at my place for 3 days, and then 4th day they left for Bangalore। And सारे वो बैंगलोर में हम जब थे, पूरे इंडिया से सारे जो विनिंग अदर स्कूल्स थे वो भी आए थे, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ मोनास्टिक स्कूल रीच्ड देयर। तो वही चीज को हमने अभी और पुश किया। यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एक पूरा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे जितने भी मोनास्ट्रीज है वो स्कूल के टीचर वो नेटवर्क में आते हैं। तो हमने स्पेशली इस बार गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स के लिए ट्रेनिंग तो करेंगे ही, बट इनके लिए हमने अलग से ट्रेनिंग की। एंड वो ट्रेनिंग में भी चांगथंग विच इज अगेन अ रिमोट प्लेस, वहां से टीचर्स आए, नुब्रा से टीचर्स आए, कारगिल रीजन में एक दूसरा जो प्लेस आता है वहां से टीचर्स आए, और वो सबको हमने ये चीज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। एंड ये प्रोग्राम में भी क्या है कि एक्टिविटीज करके आप सीखे। हमने जो स्टूडेंट मंक्स है उनको भी बुलाया और हम साथ में बैठ के एक्टिविटीज कर रहे, फिर उनको पूछ रहे कि आप कर सकते हो, गिविंग देम द फ्रीडम कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पे लद्दाख में वन थिंग इज पीपल हैव लिटिल लो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कहाँ नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहाँ ये करेंगे, बट वही है कि नाउ जस्ट बिकॉज दिस वन स्कूल मेकिंग टू इट, वी आर हियर टू हेल्प यू। हम आपको सब चीज में हेल्प करेंगे, पर आप शुरू तो करो, एंड आप शुरू करोगे तो आप अपने मोनास्ट्री को भी जीरो वेस्ट बना सकते हो। एंड दिस मोनास्ट्रीज दे होस्ट डिफरेंट टूरिस्ट, बिकॉज सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं, तो फिर वो मैसेज वहां पे भी पहुंचेगा। सो कैसे एक स्कूल्स वाले बच्चे टूरिस्ट से इतना कुछ नहीं करेंगे, बट मोनास्ट्री में तो सारे टूरिस्ट जो आते हैं वो विजिट करते हैं। सो हाउ डू वी पुट दैट मैसेज अगेन एंड अगेन कि हाँ, यू नीड टू ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव, दैट इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई, एंड वैसे ही पूरा एक एक करके चीजें करें। सो दिस इज व्हाट वी बीन डूइंग इन एजुकेशन, एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि लास्ट ईयर Wipro funded us, like we will put our video soon and post soon on this। 1 साल से हमने किसी को नहीं बताया है, like बहुत कम लोगों सोशल मीडिया पे नहीं डाला है। We've done 5 infrastructure projects
एंड वो 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है, इट्स ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, कि ये प्रोग्राम के थ्रू हमने वेस्ट, वाटर, बायोडाइवर्सिटी इसके बारे में तो सीखा, बट ऑल्टरनेटिव्स कैसे करें. सो इन 2 स्कूल्स, एक कारगिल में, एक जांस्कार में, हमने पैसिव सोलर क्लासरूम बनाया है. पैसिव सोलर क्लासरूम में, हमारे मुंबई में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, बट लद्दाख में ठंड बहुत ज्यादा होती है, एंड विंटर्स में तो बहुत ही ज्यादा ठंड होती है. बट द वन गुड थिंग इन लद्दाख इज देयर इज अ एम्पल ऑफ सन अवेलेबल. सो देयर इज अ डिजाइन ऑफ द हाउस which is made it in such a way कि वो साउथ ईस्ट फेसिंग हो. 1/3 of the building is glass, and वो भी डबल ग्लेस्ड. डबल ग्लास है कि जितना भी सनलाइट आए वो रूम के अंदर स्टोर हो, एंड द वॉल थिकनेस इज 2 feet. So they are 2 feet wide, and these are mud buildings. So without using any heating system, जो जांस्कार कारगिल दोनों जगह में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, एंड ये जगहों पे इतने पेड़ नहीं है, तो एनिमल वेस्ट होता है, वो यूज किया जाता है एक हीटिंग, लोकल हीटिंग सिस्टम बुखारी में. बट अगर वो तो सब लोग अपने घर के लिए यूज करते हैं, तो स्कूल्स में कैसे वो चीज लाएंगे? तो वो नहीं है. तो ये पैसिव सोलर इज समथिंग, विदाउट यूजिंग एनी हीटिंग सिस्टम, द रूम विल स्टे वार्म. And the school needed a room, so we were like, yes, we'll make this room, but we'll make it a passive solar. And जब हमने वो पैसिव सोलर का फाउंडेशन स्टोन ले किया था इन जांस्कर, इन स्क्यागम विलेज, तो वहां पे ड्यूरिंग दैट फाउंडेशन स्टोन लेइंग, आई रिक्वेस्टेड ऑल द पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो आप सबको आके हेल्प करना होगा. सो स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, everyone contributed in the labor work. हमने हमारे एक्टिविटीज में सिखाया था कि आपको अलग अलग वेस्ट कलेक्ट करना है. फिर वही क्वेश्चन के ऊपर इंसुलेशन में यूज किया. पेरेंट्स ने एक दिन में 400 to 450 मड ब्रिक्स बनाए. The parents contributed in the labor work. And within अप्रैल में फाउंडेशन स्टोन ले किया था, नवंबर में हमने उसका रिबन कट किया एंड यूज किया. और द प्लेस लाइक वाज प्रोवाइडेड बाय द विलेजर्स. स्कूल का गेट यहाँ है, यहाँ पे स्कूल है, तो उसके सामने बीच में रोड है, और यहाँ पे हमने वो क्लासरूम बनाया है. तो एंड इट इज लाइक द स्कूल विल यूज इट, द कम्युनिटी विल यूज इट, द यूथ विल यूज इट. इट इज ओपन फॉर एवरीवन. वहां पे हमने लाइब्रेरी कॉर्नर भी सेटअप किया है, तो वहां पे विप्रो से लाइब्रेरी के बुक्स आएंगे, सस्टेनेबिलिटी लाइब्रेरी के रिलेटेड बुक्स. सो वी आर पुटिंग अप दैट. लद्दाख में विंटर वेकेशन होता है, सो द यूथ, द एल्डर क्राउड, दे टीच द यंगर स्टूडेंट्स, एंड दे हैव दिस विंटर ट्यूशन थिंग गोइंग ऑन. तो पूरे विंटर में हमारे ये क्लासरूम में विंटर ट्यूशन कंडक्ट हुआ, again without using any heating system, so which was a big for us. And again I'll say, I really feel unreal at times ke oh we were able to do it. It was not that I made the bricks and did it. We proposed it, I got the right person on board who made the design of it. I used to call previous teachers and everyone ki kaam ho raha hai ki nahi, and used to take the follow up, but it was for them and they also supported it and did it, so isliye wo kaam itna time pe hua. So दो schools में ये काम किया है. In 2 schools we started a zero waste school and community project. So everywhere we try to do the like alternative project, we try कि वो सिर्फ schools के लिए ना हो, but वो community में भी जाए. So we've been talking about कि waste नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, but करे क्या next? So we started this zero waste school and community project where we have installed dustbins, but we don't call them dustbins, we call them resource banks. हमसे पूछते बैंक में आप क्या करते हैं? बैंक में हम वेस्ट नहीं, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं. तो यहाँ पे भी आपको कोई पर्टिकुलर चीज जमा करनी है. सो वी इंस्टॉल्ड दिस प्लास्टिक बॉटल बैंक, प्लास्टिक रैपर बैंक, ये पेपर बैंक, मेटल बैंक, एक्सेट्रा. सो वन ऑफ आवर स्कूल where we have done this project, it is an Indo-Pak border, and उनका ethnicity, उनका language, everything is different. And वहां पे कारगिल वॉर जब हुआ था तब शेल वगैरह गिरे थे. So it's very like
वहां पे लाइक ऑन द ऑपोजिट माउंटेन देयर इज पाकिस्तान का पोस्ट, एंड एक साइड पे इंडियन पोस्ट है, तो वहां पे हर चीज अवेलेबल नहीं है। तो जब जब बच्चे हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तब तब उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जहाँ पे उनका वाटर रिसोर्स पॉइंट है, जहाँ से वो वाटर फेच करते हैं विमेन ऑफ द विलेज, दैट इज द प्लेस जहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्ट है। तो हमने जब जब ये प्रोजेक्ट किया, तो हमने सेट ऑफ रिसोर्स बैंक स्कूल में लगाए, एंड सेट ऑफ रिसोर्स बैंक वो जो पॉइंट था वहां लगाए। आई विल नॉट से कि पूरा वेस्ट खत्म हो चुका है, नहीं, बिहेवियरल चेंज टाइम लेता है, बट आज के दिन में वो पॉइंट पे वो वेस्ट कम हो चुका है। बॉटल सारे अलग जमा करते हैं, उसको सेव करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, या फिर समर्स में कबाड़ी वाले को बेचते हैं। रैपर्स अगेन, दिस इज द बिगिनिंग, कि रैपर्स कलेक्ट हुए, फिर पता चलता है कि हाँ रैपर्स का हम कुछ नहीं कर सकते, देन गोइंग अहेड एंड डूइंग द ब्रांड ऑडिट, which are the products which are generating more waste, can we find an alternative to that? But हम जब तक कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज वेस्ट ज्यादा कर रही है। सो गोइंग एंड डूइंग दैट पॉइंट, एंड वहां पे आज के दिन में लाइक वो विलेजर्स दे आर सो हैप्पी कि ये प्रोजेक्ट हुआ है, एंड दे आर अमेजिंग पीपल। उनको वही है कि ये इतनी चीजें हम खुद के लेवल पे कर सकते हैं, एंड हमारा भी पॉइंट वही है कि हाउ कैन वी मेक दिस कम्युनिटीज सेल्फ सस्टेनेबल। इट शुड नॉट बी द केस कि जब तक हम हैं तब तक वो प्रोजेक्ट हो, लाइक वी आर द कैटलिस्ट, बट ये आपको खुद मैनेज करना है। उस चीज में भी मतलब थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट वो होगा। तो 2 स्कूल्स में हमने ये प्रोग्राम किया है। फिर एक स्कूल में हमने ग्रीन हाउस बनाया है। हमारे मुंबई में ग्रीन हाउस की जरूरत नहीं पड़ती है, बट लाइक इन लद्दाख हियर अगेन द एग्रीकल्चर सीजन इज वेरी शॉर्ट। अब भी जाके शुरू करेंगे तब जाके सितंबर तक रहेगा, उसके बाद नहीं होगा। फिर हमारा पूरा डिपेंडेंसी वेजिटेबल्स का आता है श्रीनगर पे, एंड श्रीनगर से फिर वो गाड़ी से सामान आता है, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मे बी फर्स्ट वीक तक हो। उसके बाद सब्जी आना बंद हो जाती है। फिर उसके बाद कार्गो से आती है सब्जियां। 150 रुपीज देना पड़ता है पर केजी फॉर टमाटर जब बाकी जगहों पे 20-30 रुपए किलो होता है, यहाँ पे 150-160 रुपीज ऐसे केजी देना पड़ता है। सो वी हैव मेड दिस ग्रीन हाउस इन अ स्कूल इन कारगिल, जहाँ पे अर्ली समर्स एंड अर्ली विंटर मंथ्स जैसे सितंबर अक्टूबर टिल नवंबर एंड मार्च अप्रैल मई, ये टाइम पे स्कूल्स कैसे अपने ग्रीन हाउस में खुद वेजिटेबल्स उगाए। सो स्टूडेंट्स लर्न अबाउट हाउ टू ग्रो द वेजिटेबल्स, एंड सेकेंड थिंग, इसमें जो वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं that can be utilized in their midday meal supply. So उनका dependency reduces on the outside supply. So this is what we are trying to, how they can find their solutions in their own capacity and not just like always have the thought कि हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें तो इस चीज की जरूरत, हमें बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है। We can find simple solution. But and like just couple of days back, November में they had grown cabbages, they had some flowers, and couple of days back they sent me pictures, and they have like 10 different things planted there, and they'll be growing more things there. So again, it's a beautiful thing. Am I going and doing it? No. We got that project, but it's the community, it's the school, and it's the teachers and the students who are doing it. So one thing will be provided, but it is them who needs to continue it. तो वो चीज बहुत ज्यादा important हो जाती है, and I think यही चीज है जो हम थोड़ी डिफरेंट कर रहे हैं बाकी लोगों से, कि हम सिर्फ जाके एक चीज नहीं दे रहे एंड फिर हम बोले कि हमारा काम हो गया, बट वी आर देयर। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, आई विल नॉट से कि प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, कि सारी चीजें सक्सेसफुली हो जाती है, बट वी ट्राई टू बी देयर। हम जाते हैं, काम करते हैं, प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार हम सोल्यूशन दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देम हु गिव अस द सोल्यूशन। एंड अगेन एंड अगेन आई से दिस, आप वहां पे रहते हो, आप ये चीज यूज करोगे, तो आप मुझे बताओ कि क्या सोल्यूशन होगा।
मैं एक चीज लेके आती हूँ पर दूसरी चीजें आपको मुझे बतानी है. So that's how it works, and that's how we've been working and doing things. Yes, this is really good. जैसे कि कहा जाता है, don't you teach a man how to fish और वो हमेशा खा सकेगा, आप उसे कब तक मछली ले जाके दोगे. So that's exactly the independence. Yes. वो वाला जो part है, we completely believe, and I can relate to you so much because Iti Skills School जो मेरा social impact initiative है, which of course I launched recently, but उसका भी वही है, to make people, enable them to be independent towards financial independence. Because that's the reason वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं कि वो 300 रुपए का एक दिहाड़ी कर लेगा. Students are walking down the hills of Satara, 8 kilometers one way, chappal में, सुबह 7:30 बजे dot they are at school. And then after school they walk back home again. There is no bus, there is no incentive, there is no fancy thing. एक ट्रस्टी के फर्स्ट फ्लोर में हो रही है क्लासेस, कभी मंदिर के उसमें हो रही है, it depends. So there are students, there are people who are so motivated and so committed. So what we have to do, we can just join the dots and we can just help them a little bit to just क्या missing है, वो missing link, like you said very correctly. I also identify as just a catalyst कि हम उन्हें मदद करेंगे जो चीज वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए या फिगर आउट नहीं कर पाए. वी आर जस्ट वन ऑफ दोस जिक्सॉ पजल का पार्ट. उसके बाद में once you tell them, then वो एक लाइट बल्ब जल जाता है and they can figure out themselves. And it's such a pleasure and pure happiness to see them thrive and see them brainstorm and come up with all these things. It's really amazing. I like to share one more thing. So Leh is the capital of Ladakh. यहाँ पे बहुत ज्यादा एनजीओ आते हैं, काम करते हैं, क्योंकि सबको है ना अपने वेबसाइट पे लद्दाख का फोटो चाहिए. अरे वी वर्क एट अ फैंसी प्लेस. एंड फिर वही ये होता है ना कि थोड़ा सुपरफिशियल हो जाता है. और कारगिल और जांस्कर ऐसी जगह है ना, कारगिल तो फिर भी रीचेबल है, बट स्टिल वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस गो एंड वर्क देयर. जांस्कर का चैलेंजेस ये है कि बहुत दूर है, बहुत नेटवर्क नहीं है, एंड hardly any NGO go and work there, and continuous work वाला काम नहीं होता है. And it was challenging for us also. But जब मुझे ये विप्रो वाला प्रोजेक्ट मिला, so my idea was like, if I have this opportunity with me, मैं जाके ऐसी जगहों पे करना चाहूंगी जहाँ पे इसका एक्सेस नहीं है. मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. I'll tell you, financially, mentally, like हर चीज में बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं. I'll tell you, वो हमारे जो ये विप्रो प्रोग्राम के भी सबमिशन जो आते हैं, ले कारगिल में ज्यादा आते हैं, जांस्कर में बहुत कम आते हैं, बट हमारे रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन वहां पे ज्यादा होते हैं. बट स्टिल आई मेक अ पॉइंट, इट इज ओके, अगर हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा, ऐसे भी कोई नहीं जा रहा है. तो लेट्स टेक अप दो चैलेंजेस एंड लेट्स गो देयर. एंड दैट्स व्हेन कि जो हमने वो पैसिव सोलर स्कूल का भी बताया, स्कैगम का भी बताया, वो उनका वीडियो आएगा ना तो आप उसमें देखोगे, वो एक विलेजर है, वो बोल रहे हैं कि आप इतने दूर इतने पहाड़ क्रॉस करके आए और यहाँ पे नहीं कोई आता, आप यहाँ पे आके आपने काम किया है. तो जब उनको पता चलता है कि समवन इज कमिंग फ्रॉम सच फार प्लेस एंड ट्राइंग टू वर्क हियर, तो वो अपना 100, 200, 300% देते हैं. द ननरी ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम थिंग. वो ऑलरेडी एनवायरमेंट के ऊपर काम करते थे, बहुत ज्यादा चीजें बोलते थे, बट जब ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, उनको एक क्लियर रोड दिखा, वो हर काम करते. वो ऐसा नहीं था कि जस्ट प्रोग्राम के लिए उन्होंने वो पार्टिसिपेशन किया. अंबेडकर जयंती था तो उस दिन पे भी प्रोग्राम था, तो वहां पे भी उन्होंने वेस्ट एंड वाटर के बारे में बात की. जब लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे था तभी भी उन्होंने वो चीज के ऊपर बात की. तो वो ऐसा कोई इवेंट नहीं छोड़ते जहाँ पे इस चीज के बारे में बताएं. वो विलेजर्स के पास जाके ये प्रोजेक्ट मतलब अवेयरनेस करते हैं. हमने जो ये रिसोर्स बैंक वाला प्रोजेक्ट कारगिल में किया 2 जगह पे,
इन्होंने खुद अपने लेवल पे जो बचे वो पुराने ड्रम्स होते हैं उसमें कर लिया. सो इट्स द विलिंगनेस. Yes. इट इज द लाइक व्हेन दे गेट टू नो दिस रिसोर्सेस, ये इसकी ज्यादा कदर करते हैं. बिल्कुल. जब हम लाइक आई ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग विथ मी ऑल्सो. जब हमारे पास चीजें नहीं होती है ना, Yeah. हम उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा करते हैं. विंटर में पानी नहीं होता है, जो पानी मैं उठा के लेके आ रही हूँ वही चीज मुझे कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज के लिए यूज करना है. तो वो हर बूंद हम सेव करेंगे. वो गर्म पानी भी कितना यूज करना है वो हम यूटिलाइज करेंगे. बट व्हेन आई गो बैक इन होम, जब वो नल भी खुला देखती हूँ Yeah. ना, फिर वो इट जस्ट हिट्स कितना पानी वेस्ट हो रहा है. जस्ट बिकॉज हमारे पास जब नहीं होता है उसकी हम चीज की वैल्यू ज्यादा करते हैं. एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन बोथ द प्लेसेस, कारगिल एंड ज़ांस्कार. द रीजन वी डिड द प्रोजेक्ट्स इन कारगिल इज बिकॉज वहां पे टीचर का एंथुजियाज्म इतना ज्यादा है. दे आर सो कमिटेड. वो अपने बच्चों के लिए सारी चीजें करना चाहते हैं. सो देन माय हार्ट गोज आउट टू देम. मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए. बिल्कुल. मैं ऐसा आई डोंट वांट टू वर्क इन अ प्लेस जहाँ पे के मैं कुछ करने आ रही हूँ, आप आओ, चाय नाश्ता करो, यू हैव फन एंड देन यू गो एंड फॉरगेट. No. मैं नहीं करना चाहती हूँ. मैं उसके बाद घर पे बैठूंगी. बिल्कुल. आई माइंड माई ओन बिजनेस. मुझे नहीं करना है. आई लुक फॉर पीपल जहाँ पे वो मेरे टाइम का, मेरे कलीग्स के टाइम का वैल्यू करे. दे रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दीज गाइज आर कमिंग एंड ट्राइंग टू वर्क फॉर अस एंड इट इज फॉर अस. तो वो चीज होनी चाहिए. एंड एवरीवन शुड बी अकाउंटेबल. इट इज नॉट लाइक कि इन्होंने किया है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारे लिए क्या किया है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दीज आर ऑल्सो सम थिंग्स विच टेक टाइम, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि एनजीओ वाला कल्चर ऐसा बन चुका है कि जहाँ पे लोगों का परसेप्शन ये होता है हमें कुछ मिल जाएगा. तो वो चेंज करने में बहुत टाइम लगता है. बिल्कुल. एंड हमें हर टाइप के लोग मिलेंगे. बिल्कुल. देयर विल बी पीपल जो के फ्री सर्विस टाइप्स यूज भी करेंगे. बट देन वी नीड टू फिल्टर, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हाउ आर वी गोइंग टू डू इट. एंड slowly we find a way. Yes, yes, I totally agree with you. That sense of ownership जब आ जाती है students में, teachers में, वो अगर आपके पास आपने ढूंढ लिया, वो आपको मिल गई, तो that is your treasure. मतलब आपको फिर सब कुछ मिल गया. Because when the other party is so committed as you, and you know, they then appreciate, respect, and they are totally into it. And I would like to share our dream for that school in that village near Satara, which does not have its own building for the last 23 years. And when I heard Wow. about it, the 8th, 9th, 10th, they have 3 grades because that school did not, like that 12, 13 villages did not have any school for 8, 9, 10. They had only the government 7th grade तक का जो primary school होता है, that's it. So there have been generations who never studied beyond 7th grade because there was no school. And then this primary teacher who was very committed educator, and he said, why not? Why shouldn't, you know, people like my students study? Unka 7th ke baad kya future hai? So then people said, you are so committed, just start. So he started this and he became like, he's a trustee, one of the trustees. He's so old. And he wonders कि मेरे बाद क्या होगा. But when I heard of this from a farmer friend of ours, and I just like immediately went to Satara to meet them, and I was feeling like an outsider, you know. मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि लोग क्या सोचेंगे कि ये तो पुणे से आई है, you know. He actually said that I'm so happy that you're coming all the way from Pune and you want to help my students. You know, I propose that we'll make a green school because हम तो शुरुआत से ही start करेंगे, so we'll just make a sustainable green school for them, and it's still in the pipeline because Sarpanch beginning में जब करते हैं it's easier. Yeah. So sorry. They are all on board. The students are on board. The parents are on board. You know कि how can we support? हम लोग like you said वो लेबर से काम करेंगे, हम लोग पुराने दरवाजे वगैरह वो सब लेकर आएंगे. People have committed कि जिसके पास मटेरियल है उसने कमिट कर दिया, सोलर वाले ने कमिट कर दिया. We are just waiting for the plan to come through. But
I am so Great. happy to hear that, that your success story is like, it'll happen one day for us as well. I'm so proud of, your God, team and all of you. It's so heartwarming. I'm loving this thank you, conversation. thank you. Now tell us I tell about, you, now, it's unbelievable for me also, and it's just like I'll tell you, since 2020, I'm like 2019 was the fellowship days. 2020 the fellowship got over, and October 2020 I came back. And since then, it is just about working. It was not about we want to do this, we'll do this. बड़े सपने नहीं, क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, whatever we can do, we can, will do. And slowly things have been just happening, and it is like वो फिर एक चीज है ना, खुद को वो ग्राउंड पे रखता है कि जितना कर सकते उतना ही करे, बहुत ज्यादा कमिट भी ना करे. And when we were doing the infrastructure projects also, we were like, we cannot do it without you, the community, कि आपके बिना नहीं कर सकते, आपकी जरूरत है. तो bringing them on board was the most important thing. नहीं तो फेल होते, सारे प्रोजेक्ट्स फेल होते. इसी के कारण Zanskar is very far. हाँ, Zanskar is very far. Kargil is very far. मैं रोज नहीं जा सकती. I stay in Leh. तो ले से कारगिल का रास्ता इस 4-5 घंटे, एंड हमारे विलेजेस और दूर है. तो मैं डेली जाके वहां पे वो काम नहीं कर सकती. पर तो इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वाज हैविंग, जब हमने प्रपोज भी किया तो टीचर्स के साथ सारी चीजें डिस्कस की, क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं. एंड फिर जब शुरू हो गया तो इट वाज लाइक कम्युनिटीज के साथ मीटिंग्स पे मीटिंग्स किए कि आपका साथ चाहिए, उसके बिना नहीं होगा, नहीं तो सब फेल हो जाएगा. हमारा एक प्रोजेक्ट है कारगिल में जिसमें मतलब प्रॉब्लम्स आए हैं, वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज वहां पे चैलेंजेस आर लाइक कि बहुत ज्यादा दूर है. वो जो विलेज में लोग काम करते हैं, लाइक जो कम्युनिटी है, वो सारे लेबर वर्क वाले हैं. तो अगर वो अपना पूरा लेबर वर्क यहाँ पे दे देंगे तो वो खुद क्या कमाएंगे. सो दैट वाज आल्सो अ थिंग. तो वी हैड टू फिगर दैट आउट. उसमें कॉस्ट भी ओवर बजट हो गया, बिकॉज एग्रीकल्चर का टाइम शुरू हो गया. तो वो स्कूल भी ऐसे लोकेशन पे, इतने सुंदर लोकेशन पे है, बट उसके आगे रास्ते में पूरे खेत है. अभी लोग खेती करेंगे कि फिर और वो व्हीकल नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते. सो चैलेंजेस आए हैं, बट स्टिल कि वो कॉस्ट भी ओवर, पर्टिकुलरली वो प्रोजेक्ट में कॉस्ट ओवर बजट भी हुआ है. सो हाउ टू मैनेज दैट, हाउ टू डू दैट, वी ट्राई एंड लाइक वो धीरे धीरे कि हाँ ये समर्स में वो प्रोजेक्ट खत्म करना है. वो टाइम पे नहीं हुआ, बट एक साइड पे बहुत अच्छे से हो गया. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि हाँ, एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हो चुके हैं. एंड दिस इज द रियलिटी कि नॉट एवरी, इट्स नॉट अ फेरी टेल. It's not. ऐसा नहीं कि आ गए और सब कुछ हो गया. This is what is to be a real person. Life is not, or work or anything, a resume. हम सिर्फ चुन के चीजें डालते हैं, but life is not all about success. There have been, all the failures are stepping stones. जब आप इतनी बार फेल हुए हो, आपने सीखा है, you figured out some new idea, new plan, new strategy, how to work around it. And तभी आपने वो next level पे पहुंच गए. It's like unlocking the door for the next level. मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगी. तो पिछले साल फॉर द फर्स्ट टाइम वी डिड समर कैंप्स. लाइक इफ आई टेल यू, आई एम इन माय 30s, early 30s. My colleague is in her mid 20s. The other is in early 20s. This is the team. Okay. And हमने समर कैंप किया कारगिल में. We had 70 people. 50 students, 20 teachers. Okay. 3 दिन का प्लान था. And first the chief executive counselor, जो बड़े अच्छे पोजीशन पे यहाँ पे लद्दाख में होते हैं, हिल काउंसलिंग का एक है, they were supposed to help us. And because of some reason they were not able to help us. And I am leaving today for Kargil, और मुझे सुबह पता चलता है कि ये हेल्प नहीं होगी. I'm literally in tears कि कैसे होगा. And but we go 3 days, 2-3 days in advance, and with the help of the teachers again, we definitely we overshoot our budget. Okay. But we were like, we'll figure it out. हम वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में धक्के खा के लेटर निकला कि ओके, आप हमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आप
स्टूडेंट्स टीचर्स को परमिशन दीजिए to come for our camp. And it was the first time when the girls of Kargil, they actually came for a camp like this. And our camp was all about activities. तो सारे अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, and these were all government schools. There was no private school because there are very few schools in Kargil, private schools in Kargil, and हमारे प्रोग्राम में सारे government schools ही थे. Such talented kids. हमने 3 जो मजे किए हैं. There was so much pressure. Like it was so difficult. पहले I'm telling you, just 3 people managing that 70 people. And जो teachers है, they are very senior to us. Again, being very grounded and telling them कि सर ये चीज हुई है, हमें ये support नहीं मिल रहा है, हमें आप सबकी जरूरत है. They all came together and helped us. And it was a success. And जो उसके बाद जो result आया, it was amazing. We took our students for 6 days bird watching camp. Again, 25 students from class 8th and above, 8th, 9th, 10th. बड़े बच्चे हैं सारे, सब समझदार है. तो उसमें हम टीचर को नहीं लेके गए, तो उनको पहले से बताया कि you need to behave, we need to help each other. कि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ कर सकते हैं. And we were on the ground for 6 days. Wow. We went to different places. We went at like one of the most beautiful places for bird watching. And it was like, it was not just 3 of us doing, but they also helped. And हमारी तो मतलब क्या ही बोलूं कि बहुत ज्यादा चीजें थी करनी थी, but again we managed. क्योंकि मुश्किल तो बहुत आती है, but now when we go back and see, like it was a fun time. Now we are making a booklet where a student's picture will be there. A sketch that the student made of the bird and the actual picture of the bird, and we'll be naming that as Birds of Ladakh by students of Ladakh. Am I a bird expert? No. We got a birding expert on board. So this is how we work out. I give you the award. I give you the award for an amazing, how do you make that? Lovely, compassionate warrior, and I'm sure everybody is loving it, and oh my god, you are just awesome. A question here, can you share Smita Gurav is asking, can you share sustainability library books? Matlab, I think she wants to ask you कि वो उनके नाम क्या है or something like that. Sure. So I had received some 17 books, and there are some more books. So we'll share. I can share that list for sure. Okay, great. And then, there are so many people saying clap, love, all that. Salute to your girl, motivating, all that. Amazing. Thank you. I think we can just go on and on. हमें time को नहीं देखना चाहिए. If it is okay with you, it's okay with me. I don't mind. But I know that you were working until 6:30 and you've had a long day. So you may. I have a meeting at 10. One more thing I'll share, like how things have been just working out. So during the Naropa Fellowship, I got in touch with, there's this one person from US, her name is Dr. Katie Conlon. And never thought of working, like Nat Geo is a dream, right? She got a National Geographic Explorer project. And when I was in the fellowship, I had applied for, like she had said, people who can assist. So I had applied for that. Then the COVID thing happened. And when COVID happened, we had really bonded well, and she knew how I'm working and like the intentions of work and everything. I got on board with her as a research partner, and I traveled all in the Himalayas for working in the different, like we filmed different organizations. Now there is another project, Ganga Plastic Pollution Mapping Expedition. So I got an opportunity to work as a researcher on that project also. So I'll be in Uttarakhand next week. In few days. I want to tell you a secret. Please. I am jealous. It's just that things fall in place. It's okay. Right now, this is
this is what I have to do, and right now you have to do what you have to do. So I'm so proud of you. You can't even imagine, Preeti. मुझे Thank you. शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे बोलूं कि जब आप when you want to do something good, I believe the universe conspires to make it happen, and you have I know. experienced I it. believe in that. Yes, you have experienced it every day, and so have I. So मैं तो बिल्कुल believe करती हूँ कि the more you goodness or good thinking or compassion or kindness is something like that, जितना बांटोगे उतना वो double होते जाता है. So we don't really have to be conjuice in that area. And I also feel that it is more about, like, this is something okay, when I was doing work, volunteering with that food related organization, Feeding India, when we used to give food. Mhm. So this thing had really hit me. Mhm. I am not coming here doing this work just because मुझे पुण्य कमाना है. नहीं. This is something which has happened with people. They do it thinking कि वो results मिलेगा. अगर हम result सोच के करेंगे तो उसका फायदा ही क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो एक चीज है जो मतलब I'll say कि when you say कि compassionate होना, I don't know if I'm compassionate or not. I'm just doing what I like. And when I see people, like when I see the smallest of result, that makes my day, that makes everything worth I do. Yes. And वो चीज मुझे खुश रखती है. And I'll say I'm a selfish person. हम दूसरों के लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं. मुझे पहाड़ देखना पसंद है, इसलिए मैं लद्दाख आके बैठी हूँ. इसलिए मुझे पहाड़ में मतलब इसलिए मैंने ये चूज किया था. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट जब हम वो सोच के करते हैं तो आई डोंट नो उसका क्या है, बट माई पर्सनल इज लाइक आई डू इट फॉर माई सेल्फ. एंड when someone is getting benefited with it, it makes it more meaningful for me. So that's how it goes for me. I would say. Yeah, see here, Eco Savera has said, nature helps those who do anything with good intention. So your good intention and self-love. If you're going there for self-love, Most important. it is a very good intention, and we need it. So the more happy people will make the entire world happier. So no problem. We should always Yes, have yes. We need to be we need to be happy within. exactly. If we are not happy within, we can't make others happy. वो चीज बाहर जाएगी ही नहीं. Exactly. तो सबसे पहले खुद को पहले देखना जरूरी है. बिल्कुल. खुद को देखो, and whatever is your reality, you must accept that reality, not fight it. Yes, yes, yes. नहीं तो हम Yes. डिनायल में रहते हैं. आधे से ज्यादा लोगों के दुखी होने का कारण ही वो है कि वो डिनायल में रहते हैं. Whatever good, bad, ugly, whatever your situation is, it is that. It is the truth, and you take your first step कि आप क्या करना चाहते हो. What do you want to do now next? So एंड दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि जब आप शहर में रहते हो तो आपको ये चीजों को सोचने का टाइम नहीं मिलता. बट आप थोड़ा दूर जाते हो, थोड़ा ऐसे थोड़े रूरल एरिया में, दिस इज माई पर्सनल थिंग अगेन, एटलीस्ट फॉर मी इट हेल्प्स कि फिर हम वो ज्यादा अच्छे से सोच पाते हैं कि कैसे होता है. इफ आई वॉज इन सिटी आई वुड नॉट डू एनी ऑफ इट. मैं 2-4 काम करके खुश रह जाती, अरे मैंने अपना हिस्सा कर लिया. बट वही कि जब हम वो थोड़ा रहते हैं दूर तो फिर वो हो जाता है. बट अगेन इट इज नॉट एवरीवन कैन डू इट. सो हम अपनी कैपेसिटी में कितना कर सकते हैं. एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. नॉट एवरीवन हैज टू लीव देयर हाउस एंड डू इट. अगेन आई एम सेइंग आई वाज सेल्फिश. I like the mountains, that's why I chose it. And I did not have such responsibility back at home कि मेरा कोई पार्टनर नहीं था, कि ऐसा कोई चीज नहीं थी कि जिससे मुझे वो एक लिमिटेशन आ जाती. तो वो चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया. I know. लेकिन I pray that you always remain happy and always remain good. Selfish wala. Thank you. Now we have, like, I'm sure you made a million fans today. Ki wow, she's an amazing. So what do you want to tell them as
your message about zero waste, sustainability. कैसे अगर वो उनमें से कोई शुरू करना चाहता है ऐसे कुछ यू नो एंड वो शहर में रहते हैं मे बी एंड दे थिंक कि अरे यू नो इट्स नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मैं कैसे करूं, ये तो मेरा डेली, व्हाट शुड दे डू एज अ फर्स्ट स्टेप? देखो सिंपल वाली चीजें तो सबको पता है, बैग मत यूज करो, बॉटल मत यूज करो. आई वुड से चैलेंज योरसेल्फ अ लिटिल मोर. जैसे कोविड के टाइम पे आई स्टार्टेड मेकिंग माई टूथपेस्ट एंड सिंस देन आई बीन मेकिंग माई टूथपेस्ट एंड वो टूथपेस्ट वाली चीज बहुत आसान है. सो हाउ कैन वी जस्ट गो अ स्टेप अहेड aside from the bottle and the plastic bag, and ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है. बट उसके साथ दूसरी कौन सी चीजें कि कैन वी choose right products. It's the most important thing. I do this here. मैं सारी लूज चीजें खरीदती हूँ, बट स्टिल आई हैव नॉट रीच. 2018 से ट्राई कर रही हूँ, जीरो वेस्ट नहीं हो पाता है, बहुत सारा मुश्किल होती है. बट वही है, कोशिश तो करें. जब तक कोशिश नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा. तो can we make things on our own? Like there are times, like यहाँ पे लद्दाख में हम डिलीवरी इतना नहीं मिलता है, and there are times when I want to eat something from outside, and if I get something ordered, फिर वो वही प्लास्टिक में आएगा. So I make sure I order pizza because वो बॉक्स में आता है. So like, am I not doing good? At least I'm trying. I'm not saying कि मैं बहुत संत हूँ, मैं बहुत नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चीजें एक करती हूँ. So how can we just be more mindful on things that we are trying? I think that is just make a list of 5 things that you can change and try and focusing on that. When I started doing it, so 2018 में ही first चीज जो की थी, I moved all my personal care products टू ऑर्गेनिक वंस, कि या फिर जो एथिकल ब्रांड्स है उनके चूज किए. फिर धीरे धीरे खुद का बनाना शुरू किया. धीरे धीरे कुछ चीजें तो यूज करना ही छोड़ दिया. आई डोंट यूज फेस वॉश, आई डोंट यूज मेकअप एंड वो सारी चीजें. तो वो धीरे धीरे होगा. बट एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप वाज लाइक मूविंग टू मोर एथिकल ब्रांड्स. वी नीड टू सपोर्ट मोर brands who are doing right. That is something which people in city can do. And वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमें हर चीज खुद से बनाने की भी जरूरत नहीं है, पर जो लाइक लोकल ब्रांड्स है उनको सपोर्ट करे, लूज चीजें खरीदे, उसकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी. हाँ, अमेजोन, लाइक बहुत ब्लिंकिट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए लाइफ आसान बनाती है. पर शॉप में जाके खुद खरीदते तो उसका भी मजा अलग है. तब आप ज्यादा चीजें देख सकते हो. मैं तो शॉप में ही जाके खरीदती हूँ, मैं ऑनलाइन वाली बिल्कुल भी नहीं. मुझे खाना भी चाहिए होता है तो मैं मतलब दही पनीर, और इफ आई वांट टू पैक समथिंग फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, आई कैरी माय डब्बास, उसी में लेते हैं. एंड उसमें कोई बुरी बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी बाहर का खाना ही बंद कर दो, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है. हम इंसान है, और चाहिए हमें थोड़ा. नहीं, ऑफ कोर्स. और जीरो वेस्ट होना इसका मतलब ये नहीं है दैट यू स्टॉप enjoying what you love to do. Of course, you can eat pizza, you can go out and have dinner, or you can go, you know, you can do everything, but you just have to do it mindfully. कि क्या मैं कचरा produce कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बस you have to just have that thought. That's it. I love chocolates. I used to have वो डेयरी मिल्क सिल्क बड़ा वाला अकेले खाती थी. 2018 में छोड़ दिया. मैगी आई हैव नॉट ईटन. डज दैट मीन कि आई हैव लेफ्ट चॉकलेट्स? नहीं, मतलब वो मेरा कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम हो गया है. बट देन नाउ आई नो प्लेसेस जहाँ पे मुझे लूज मिलता है, वहां पे भी मैं जाके बोलती हूँ प्लीज ये डब्बे में दे दो ना. और हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं और रैपर्स और टॉफीज वो सब होते हैं, हम उनको सब बोलते हैं कि तुम उसे बॉटल में डाल दो, एटलीस्ट ये कोई गाय कुत्ता नहीं खाएगा. अगर तुम्हारा इतना ज्यादा वो हो रहा है, एटलीस्ट डोंट थ्रो इट ऑन लिटर. यू नो, वी डोंट वांट देम लिटरिंग इट. You can contain it and keep it in one place. So I would like to please continue what you were saying. I think once you start collecting it, जैसे आपने बोला बॉटल में डालना, ये डालना, एक बार कोशिश करे. मतलब लोग ये कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स ये कर सकते हैं
एक मंथ में मैंने कितने मैगी खाए या एक मंथ में मैंने कितने चॉकलेट्स खाए, एंड आई रिड्यूस दैट, And I नॉट reduced. कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लाइफ, बट अगर मैं हफ्ते की या मतलब हफ्ते की 10 टॉफी खा रही हूँ, कैन आई गो टू 8, 5? Reduce it, yeah. दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, Yeah. एज आई सेड 2018 से ट्राई कर रही हूँ, 6th ईयर हो चुका है, अभी तक नहीं पहुंची बिकॉज हर चीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है. सो हाउ डू वी रियली वर्क ऑन दैट कि हमारे पास जो चीजें है उसको कैसे हम मैनेज करें. आई थिंक दैट विल हेल्प, दैट विल डेफिनेटली हेल्प. Yeah. हर इंसान भी एक एक चीज यूज करना कम कर देगा तो भी बहुत कम हो जाएगा. एंड उसका एक बहुत अच्छा मैथ का गेम बन सकता है एक्चुअली, जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाला. सो अगर आपने एक्स मंथ में 20 यूज किया था और वाई मंथ में 15 यूज किया था, तो जी मंथ में आपने अगर इतना किया, सो जस्ट चेक योर इम्पैक्ट, व्हाट, हाउ मच हैव यू Yes. रिड्यूस्ड, कन्वर्टेड इनटू a percentage. So you Yes. understand that this percentage always has to, the number has to always go down, it should not go Yes. up. तो वो अगर हमने And सिखा दिया तो वो खुद ही कर सकते हैं अपना कार्बन फुटप्रिंट. वो बिल्कुल कर सकते हैं. और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वी नीड टू सेलिब्रेट द रिडक्शन. यस. हम है ना वो क्या करते हैं, अभी भी 5 तो खा रहे हैं, वेस्ट तो हो रहा है, नहीं, दैट्स नॉट वो नाइस. कम हुआ है, 5 कम हुआ है, उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है. आई सेलिब्रेट थिंग्स आई ओन विच आर ओल्ड. माई बैग जो मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में खरीदा था, आई स्टिल यूज इट. इट इज सम 14 years old or something, and I celebrate it. And I tell people कि ये 14 साल से चल रहा है और इसको इतना रगड़ा हुआ है. So we need to celebrate it. Yes. कि yes, things last, and वो important है I think. And somewhere we fail to do that. And हम हमेशा वही देखते, इतना वेस्ट, ये भी तो प्लास्टिक है, वो भी तो प्लास्टिक है. There are certain things we will be not able to eradicate that plastic from our life. But हमने क्या कम किया, उसको सेलिब्रेट कर ले. I think that will make more sense. And people will be motivated to do more. Yes. जितना हम नेगेटिव उन्हें नीचा दिखाएं, उससे फायदा नहीं होता. You have to motivate them, encourage them to do better. And फिर वो एक दूसरे के एग्जाम्पल से वो हमेशा वो हो जाते हैं. एक छोटी सी हेल्दी कंपटीशन जो हम कहते हैं, उससे वो हमेशा. एक टीचर ने अभी रिसेंटली बताया था हाउ शी converted the students in her class from using ballpoint pen to zero waste. She got everybody ink pen. तो वो लोग टीचर के पास की बॉटल रहती है और वो लोग यूज करते जाते हैं. सो दे डिड एन एक्सपेरिमेंट कि एक क्लास के पास बॉल पॉइंट थे और एक क्लास के पास इंक पेन थे, और वो उनका कितना वेस्ट हुआ, इनका कितना वेस्ट हुआ, एंड उसके बाद एवरीबडी वाज कन्वर्टेड. सो दीज आर ऑल अमेजिंग थिंग्स, एंड हर छोटे लेवल पे ये की जा सकती है. Of course, very true. It can be done. Like हम हमारे trainings में हमेशा we give that paper वाला pen and pencil. And तभी उनके दिमाग में वो चीज आती है कि one of the कल ही हमें एक टीचर जो मंक टीचर है वो पूछ रहे कि ये मैम आपने बनाया. Like हमने नहीं बनाया. मैंने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी कोई कर रहा है, हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं. नाउ यू थिंक कि एक आपके पास प्लास्टिक बॉल पॉइंट है, पेन है, एंड ये पेन है, तो इसमें कितना फर्क है. आपका इसमें कितना वेस्ट जनरेट होता था, इसमें कितना वेस्ट जनरेट होता था. आई विल नॉट से कि इसमें भी जीरो वेस्ट है, क्योंकि उसका जो ये ऊपर का निब है वो स्टील का है, उसका आप कैसे आप डिस्पोज करोगे. तो देयर आर थिंग्स, बट स्टिल इट इज मच मोर अ बेटर ऑप्शन देन दिस वन. तो उस हिसाब से कर सकते हैं. Exactly. So I had a question, like I was saying, that I need to ask you. How do you make your toothpaste? I have written this recipe in my, so there is a post on my Instagram. I used to not like posting. I am not a social media person, but again company के काम के लिए आना पड़ा. And I still don't stay present all the time, but yes थोड़ा बहुत. तो I had ये मैंने पोस्ट में डाला हुआ है
so people can refer that post, and उसमें मैंने comments में recipe दिया है. If you need it, I can send it to you again. No problem. मैं तो And it is tooth powder very use basic करती हूँ. thing. मैं तो tooth powder हाँ. use So करती it हूँ. is also like it is a powder only. To be honest, it is a powder only. Baking soda है, Yeah. मुल्तानी मिट्टी है, Yeah. coconut oil है, claw oil है, then there is peppermint oil and some Himalayan salt. अगर salt नहीं है तो भी चल जाएगा. हाँ. And ये सब भी नहीं है तो आप बेकिंग सोडा से भी कर सकते हो. सिंपल. उससे भी कर सकते हो. Yeah. My nani used So to say, the recipe is given. नमक से दांत साफ करो, उससे साफ होते हैं. हाँ. Then I read हाँ. कि जो बनाना होता है उसका जो अंदर वाला white part होता है, उससे दांत साफ करो, दांत साफ और चमकते हैं. So ये सारे जो नीम की टहनियों से भी तो करते थे. exactly. वॉलनट की टहनियों से भी करते हैं. I got to know that here in Ladakh. Like again, I'm learning things in Ladakh. के बाल तो पहले भी लोग यहाँ पे भी धोते होगे. ब्रश तो थोड़ा बहुत ये करते होगे, तो वॉलनट के इससे करते थे. फिर बालों के लिए भी देयर इज सम ट्री जिसके इससे बाल धोते थे. Oh, that's nice. And I'm like, see, it's not that there are no resources. There are resources available. It's just that we need to find them out. Yes, traditional wisdom. Amazing. I had so much fun, and I hope you also enjoyed our conversation. Me too. And I guess Yes. I found a twin, so thank you very much. I'm like very like older version, but then I'm happy to find you. And one day I'll see you in Ladakh बहुत जल्दी. I don't know when, but कभी ना कभी. And we shall work together. लद्दाख आओगे तो मैं आपको लिस्ट बता दूंगी कि आपको आपकी do's and don'ts. So how to be a responsible tourist. Of course. मैं तो बिल्कुल responsibly travel करती हूँ, और मतलब most of the people. My way is my responsibility. हाँ, वो लोग मुझे hate भी करते होंगे, मेरे साथ में चलने वाले, because मैं बड़े वो करती हूँ, ये क्या है, what is this? लेकिन I think अब उनको पता चल जाता है कि if they are around me, they have to be like this. Then, you know. This happens. Yeah. This is a chain reaction that happens with me also. So कोई बात नहीं, that's okay. थोड़े टाइम के लिए वो एटलीस्ट थोड़ा अच्छा बन सकते हैं और कम ट्रैश कर सकते हैं. So great, amazing, and we shall connect again and maybe have more conversations with your team, with other people. Awesome. Yes. People, if you want to ask her questions, you are most welcome to, message her, DM her. Whenever she is online, she will reply, or you can send us the questions that you have for her. She just said she's not a very social media people. Okay, she's saying Anuja Universal. Okay, so thank you so much. I really pray for your success, your safety, your protection, and all the blessings from the universe. And everyone else is sending all the best. And we look forward to the videos that you are referring to. Yes. Yes, we are also very eager to share it. So many people are joining now. बुरा लग रहा है कि should we? I think we can just go back and actually. Okay, guys, thank you so much for calling me. Yes, and we had fun. Thanks. We'll do something. Yes, thank you so much. Thank you. Bye, everyone. Definitely. We can help you make your school zero waste. We can do the resource bank program there. That will happen. Yeah. One day. Universe. Sure. Take care, yes, everybody. It will. Bye. Good night. Bye.